My name is Priya Rani. I have secured AIR 69 this year UPSC examination. This was my fourth attempt. In my second attempt, I got a rank of 284, and I was allocated Indian Defence State Service. Currently, I'm posted in Kasoli and Dakshai cantonment. I have been given dual charge of these two cantonments. And this year, I've been lucky enough to find my name again in the list with rank 69 and finally landed up in what I had dreamt of since years. Uh, this was a long journey, a very long one indeed. Uh, After my graduation in electrical engineering from BIT Meshra, I also worked in Oracle for some time in Bangalore, and then I decided to leave my job. Reason being कि हमेशा से ही चाहती थी कि सिविल सर्विसेज करना है, बट यू नो अ मिडिल क्लास मेंटालिटी ऑफ हैविंग अ बैकअप, इंजीनियरिंग वाज अ बैकअप फॉर मी, सो दैट इवन इफ आई डू नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन मैं कुछ जॉब तो कर सकती हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो द अनप्रिडिक्टेबिलिटी दैट दिस एग्जामिनेशन कैरीज. आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत एफर्ट देते हो, स्टिल ये एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है. आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स who have not cleared, who are brilliant, who are very bright. So before you are trying to enter into this cycle, आप ये भी समझ लो कि ये एग्जामिनेशन काफी अनप्रिडिक्टेबल है, काफी कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए. पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे डेली ऐसा लगता था कि शायद आई शुड गिव इट अप, बिकॉज बाकी लोग बहुत कुछ कर रहे थे लाइफ में, फ्रेंड्स वर डूइंग गुड इन देयर ओन फील्ड, एंड आई वाज फीलिंग कि व्हाट बेनिफिट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस प्रिपरेशन, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था. बट आई थिंक समवेयर मेरे दिमाग में था दैट व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड मे बी दैट केप्ट मी मोटिवेटेड कि आई शुड कंटिन्यू टुवर्ड्स दिस. एंड फाइनली इन माई फोर्थ अटेम्प्ट आई क्लियर्ड इट. अनप्रिडिक्टेबल क्यों कहती हूँ मैं, आई लेट यू नो गाइज, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा रैंक 284 आया था, एंड आई गेव माई थर्ड अटेम्प्ट, एंड आई थॉट कि थोड़े से इससे ही आई एम मिसिंग दी IAS thing, so maybe if I work थोड़ा harder, I'll clear the examination and I'll get into IAS. But third attempt में मेरा list में ही नाम नहीं था, so that was a surprise to me, a shock basically. और that's why I say that exam बहुत unpredictable हो सकती है at times. But my father told me to write this attempt again. I went for prelims without much preparation, और prelims clear हो गया, and then I realized maybe I should study and focus hard mains के preparation में, क्योंकि I did not want to miss that chance of getting selected this year. So maybe that consistency is something that you should maintain during your preparation, and you never know कि कब सारे stars align हो जाते हैं. मैं तो यही बोलती हूँ, it's about luck, it's about how your stars get aligned in which attempt. आपको किस attempt में सारे में ही decent scores आ जाते हैं. मेरे second attempt में I got low score in interview, 162 था, and that was one of the major reason that मेरा rank उतना पीछे था. But this attempt I got good marks in my interview as well, 193. So I believe वो सारे factors जब आपके एक साथ align होते हैं, it's then that you get selected in this examination. In terms of journey, I would say apart from the civil services preparation, I come from Patna. बेसिकली बिहार से हूँ मैं, और हमारे यहाँ एजुकेशन जो है, हमें पता होता है कि एजुकेशन इज द ओनली वे, जब जो हम उस जगह पे, एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. सो आई फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड आई रियलाइज दैट पढ़ना तो बहुत जरूरी है. आई शुड स्टडी रियली हार्ड इफ आई वांट टू क्लाइंब अप इन माय करियर, और maybe that has helped. Hard working भी होते हैं वहाँ के लोग, they don't give up easily. Maybe that trait has also helped me in the preparation. 2019 में मैं अपना जॉब छोड़ के आई थी, and I decided that I'll take 1 full year for my preparation. ये मैं इसलिए बोलती हूँ, before you enter into the cycle, have some time to prepare properly. मैंने स्टार्ट किया था 2019 में अराउंड अप्रैल I started my preparation, and initially I'll tell you how I carried my 1 year block.
शुरू में आई स्टार्टेड विद द स्टैटिक पोर्शन जो होता है, हमारी एनसीईआरटीज जो होती है. I've also listed down books prelims का, which I'll tell you here itself. I've shared it on my Telegram channel, but I'll share it with you guys as well. So शुरू के 2 महीने were like studying NCERTs, standard books, एक बार reading कर लिया. Then economics was my optional and मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए. आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. जो भी किताबें हैं, आई टुक द किताब, आई रेड टॉपर्स ब्लॉग एंड उससे आई स्टार्टेड माई ओन प्रिपरेशन. आई मेड माई ओन नोट्स, आई रोट माई ओन प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ खुद से किया है. सो आई टुक 3 to 4 months ब्लॉग जो होता है फॉर माई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अलॉन्ग विथ फ्यू टॉपिक्स ऑफ जीएस. So I'll tell कि जैसे अप्रैल मई हो गया, अराउंड मई और मिड जून यू कैन से आई वाज स्टडिंग स्टैटिक बुक्स. जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अराउंड आई वाज फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग माय ऑप्शनल टू द मैक्सिमम. एंड आफ्टर सितंबर मे बी मिड अक्टूबर से आई फोकस्ड ऑन माय जीएस प्रिपरेशन. जीएस प्रिपरेशन में आई फोकस्ड ऑन सिलेबस का एवरी टॉपिक, मेड नोट्स आउट ऑफ एवरी टॉपिक and prepared accordingly. And from February I switched to my prelims mode. So that is something, a cycle that I was telling you. एक साल की जो साइकिल थी वो मैं आपको बता रही हूँ. अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स में मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, बिकॉज प्रीलिम्स इज नियर बाय. सो आई टेल यू द बुक्स दैट आई रेफर्ड फॉर प्रीलिम्स, बोथ फॉर स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर पोर्शन. For static portion, polity के लिए I studied Lakshmikant. Geography I studied 11th and 12th NCERT, and in the very first attempt I made notes out of it. और दोबारा NCERT को, इस NCERT को खोला नहीं. I used to revise from my own notes. History में I divided into ancient, medieval and modern. Ancient के लिए मैंने पढ़ा है आर.एस. शर्मा की किताब और एनसीईआरटीज के कुछ चैप्टर, एंड दोनों को इंटीग्रेट करके मैंने अपने एक नोट्स बना लिए थे. दैट इज व्हाट आई यूज्ड फॉर माय प्रीलिम्स, और मेंस के लिए भी मेरे वही काम आए. सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री के लिए आई यूज्ड तमिलनाडु का एनसीईआरटी. इफ यू गो टू द मार्केट यू विल गेट तमिलनाडु एनसीईआरटी, एंड I made notes out of it. I'll tell you how I made notes out of it once I list down the book list. Modern history के लिए I studied spectrum, no notes out of it. I highlighted and underlined in the same book for revision. Art and culture के लिए I studied 11th NCERT, highlighted in the book itself. And Nitin Singhania, selective few chapters. These were also enough for my mains preparation. Art and culture और ancient medieval के जो books बताए हैं, these were sufficient for my mains as well. For environment, I studied Shankar IS का book and made short notes out of it. Economy के लिए I studied Shri Ram IS notes. Plus, because I had optional as economics, I had my concepts clear. But अगर कभी कुछ समझ में नहीं आता था तो मृणाल सर की जो वीडियो है, that helped me a lot in understanding few concepts. Also for prelims, it's very important that you are thorough with your maps. मैप के लिए एक अच्छी एटलिस्ट चाहिए. यू कैन स्टिक मैप्स इन योर वॉल्स ऑफ योर रूम. माजिद हुसैन की एक ज्योग्राफी की बुक आती है, बुक ऑन मैप्स आती है. दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस प्रिपरेशन. एनवायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर प्रीलिम्स दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन. नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वेटलैंड्स. इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, यू मस्ट प्रिपेयर डिटेल्ड नोट्स ऑन इट. मार्क द प्लेसेस, दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स, दीज नेशनल पार्क एंड वेटलैंड्स ऑन द मैप सो दैट यू कैन ऑल्सो लोकेट वेयर इट इज. वैसे भी क्वेश्चन आते हैं. ऑल्सो मैप्स में एक ये चीज है, आजकल मैप्स जो आ रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी को लिंक करके काफी क्वेश्चंस बनते हैं मैप्स के. तो while you are focusing on maps, आप ये भी वर्ल्ड मैप की मैं बात कर रही हूँ, फोकस ऑन द कंट्रीज दैट आर सराउंडेड. किसी लेक के पास कौन सी कंट्री है, ओशन के पास कौन सी कंट्री है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कौन से रिवर फ्लो करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है, किधर से स्टार्ट होता है, किधर एंड होता है. दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसके बाद वंस यू study your static portion, you can focus on your previous year questions. I cannot stress enough the importance of previous year questions. मैं prelims का इसलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ because I've written 4 attempts. I've cleared prelims in all my attempts. इस attempt में भी the cutoff for general was 75 and I scored 108 marks in prelims. So from that perspective, I can tell you that prelims में क्या what worked for me. So previous year question is very very important. आपको कैसे करनी है previous year question? I'll let you know. जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया है इट हैज 4 ऑप्शंस और यूपीएससी के उस साल में ए आंसर है, फॉर एग्जांपल कान्हा नेशनल पार्क इज द आंसर, बट बाकी 3 ऑप्शंस जो है, जो बाकी 3 नेशनल पार्क्स जो लिस्टेड है जो आंसर नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दोज ऑप्शंस एज वेल कि उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि यूपीएससी in coming years will frame questions on those options. वो उसका आंसर होगा या वो क्वेश्चन का पार्ट होगा. एंड इफ यू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस इस तरीके से, आप आने वाले चीजों में, आने वाले अटेम्प्ट्स में जो है आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो. देन कमिंग टू टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में मैंने विजन आईएएस के टेस्ट लगाए थे. आई नेवर जॉइंट प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज फॉर विजन आईएएस का. मैं मार्केट से उठाती थी जो भी टेस्ट आते थे एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व इट एट होम 2 hours. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 2 घंटे में सॉल्व करती थी, बट क्योंकि मुझे क्रंच फील हुआ इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इन द सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट आई स्टार्टेड सॉल्विंग माय टेस्ट सीरीज इन 1 hour 40 minutes. उसमें जितना बनता था मैं उतना ही सॉल्व करती थी एंड दैट गिव मी द स्पीड बूस्ट जो चाहिए होता है उसमें. देन वी कम टू करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स. You should, I personally believe, सबका अलग हो सकता है. I personally believe a good newspaper helps you understand कि न्यूज में क्या चल रहा है and it helps you relate, it helps you predict कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन साल, उससे रिलेटेड क्या स्टैटिक पूछा जा सकता है. अगर ये न्यूज में है तो इससे रिलेटेड स्टैटिक पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर चल रहा है आपका मिडिल ईस्ट में, सो मिडिल ईस्ट रिलेटेड मैप्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो गुड न्यूज़पेपर जब आप फॉलो करते हो, मैं पढ़ती थी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. द हिंदू में पूरा पढ़ लेती थी एंड इंडियन एक्सप्रेस के मैं आर्टिकल्स और एक्सप्लेन पेज पढ़ती थी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू फॉलो 2 न्यूज़पेपर आपके व्यूज भी बैलेंस हो जाते हैं. बिकॉज इन एक न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्यूज जनरली होते हैं एंड द सेकंड न्यूज़पेपर हेल्प्स टू सप्लीमेंट, ये आपको समझने में मदद करता है कि दूसरे साइड की व्यू क्या है. सो दीज 2 न्यूज़पेपर्स यू कैन फॉलो डेली. हाँ, एक सवाल जो हमेशा ही आता है एस्पिरेंट के माइंड में, मैम बहुत टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर कवर करने में, 1.5 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं. सबके लगते हैं. इनिशियली इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर. इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू आइडेंटिफाई कि इम्पोर्टेंट क्या है. बट एज यू गो फॉरवर्ड इन योर प्रिपरेशन, क्या होता है कि वो जो न्यूज़पेपर के टाइम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं. सो पैनिक नहीं करना कि बहुत टाइम लग रहा है. इट्स वर्थ इट. आई फील न्यूज़पेपर पढ़ना इज वर्थ द एफर्ट दैट इट टेक्स. बट सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर आप फॉलो करो. इफ यू वांट यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट. मैंने बनाए थे ऑनलाइन मोड में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन होते हैं, यू कैन फॉलो दैट कि अगर कोई न्यूज है आपसे छूट गया है, उसमें आया है, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हो. इनके इंटीग्रेटेड नोट्स में बनाती थी. I'll show you how I made my current affairs notes. मैं इस तरीके से, I don't know if it's visible or not. इस तरीके से मेरे नोट्स होते वन नोट पे. इफ यू कैन सी GS1, GS2, GS3, GS4. वन नोट पे मैंने ऐसे फोल्डर्स बनाए थे. और वन नोट इज द ऐप. इस पे मैंने ऐसे फोल्डर्स बनाए थे. GS1 के एक फोल्डर, GS2, GS3 एंड GS4. इन फोल्डर्स के अंदर मैंने क्या किया था कि सिलेबस के जितने टॉपिक हैं उनको ब्रेक किया था, और जो न्यूज मुझे लगता था कि सिलेबस के इस टॉपिक में जाएगा, मैं उसको वहां पे कवर करती थी, वहां पे लिखती थी. जो भी डेटा एग्जाम्पल जो मुझे लगते थे वहां लिखने चाहिए.
उसके बाद जब विजन की मंथली आती थी तो मैं चेक करती थी क्या कोई टॉपिक मुझसे छूट गया जो न्यूज में था एंड आई डिड नॉट कवर इट प्रॉपरली, तो उनको मैं कवर कर लेती थी। मंथली मैगजीन से भी मैं जो टॉपिक्स छूट जाते थे उनको ऑनलाइन मोड में ही हाईलाइट कर लेती थी या ऑफलाइन मोड में हाईलाइट कर लिया एंड टुक अ फोटो एंड अपने वन नोट में ही लगा दिया सो दैट आई हैव पूरा नोट्स एट वन प्लेस। ऐसा नहीं है कि मैं वन नोट भी पढ़ रही हूँ फिर एग्जाम के आते आते मैं मंथली मैगजीन्स भी रिवाइज कर रही हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ द नोट्स आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली यू कैन यूज दोज नोट्स इन योर एग्जामिनेशन। आप उसको रिवाइज कर पाओगे, आप उसको यूज कर पाओगे। सो प्रिलिम्स आई रिवाइज, मैंने अभी तक जो भी बोला है। जो बुक लिस्ट है फॉर दी स्टैटिक, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा एंड एनसीईआरटी, मेडिवल के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी, फॉर एनवायरमेंट शंकर आईएएस, फॉर इकोनॉमी श्री राम आईएएस के नोट्स एंड सप्लीमेंट विद मृणाल का रिसोर्सेज। एनवायरमेंट के लिए प्लीज स्टडी वेरी वेल नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेटलैंड्स इन वेरी डिटेल, इन ग्रेट डिटेल, and please keep a map and atlas handy to your आपके टेबल के पास होनी चाहिए। and previous year question, trust me, previous year question is the way to you know achieve that prelim score जिससे आपका कट ऑफ क्लियर होता है। ऑल्सो वन ऑफ द मिथ दैट आई वुड लाइक टू ब्रेक ओवर हियर, क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान होती थी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। जो टेस्ट सीरीज होते हैं मेनी टाइम्स यू डू नॉट स्कोर वेरी वेल इन द टेस्ट सीरीज, बट क्या होता है कि हम देखते हैं कि यार 70 ही नंबर आ रहे हैं तो हाउ वुड आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन। लाइक अभी तो चलो 75 कट ऑफ जा रहे हैं, बट द ईयर आई स्टार्टेड अराउंड 100 एंड 105 भी कट ऑफ होते थे। सो आई यूज्ड टू थिंक यार 75 मार्क्स आ रहे हैं, दिस इज लाइक आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बट ऐसा होता नहीं है। जो टेस्ट सीरीज होते हैं जस्ट अ प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आप टाइमिंग चेक कर पाते हो अपनी, आप कुछ नए करंट अफेयर्स है वो कवर कर पाते हो। It does not reflect your score in the actual examination. Trust me on this. Your score in your prelims test series of the coaching does not reflect your actual score in the examination. How you score, how you solve the previous question will help you in your prelims attempt. दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मार्केट में ऐसा बहुत होता है कि करंट अफेयर ये भी कवर कर लेते, वो भी कवर कर लेते, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। इट्स नॉट। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैटिक प्रिपरेशन, आपका करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता इस एग्जामिनेशन में। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं इट इज स्टैटिक बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ न्यूज में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट इज इन न्यूज, बहुत डिबेट्स चल रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं एमपीज, यू माइट हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ पार्लियामेंट। इट डजंट मीन कि आपसे पूछेगा कि विच एमपी वॉकड आउट या ऐसा क्या हो गया, ये सब नहीं पूछते। समथिंग इन करंट अफेयर्स मीन्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन योर स्टैटिक पोर्शन। सो हैव योर स्टैटिक वेरी स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं से। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, इफ यू स्टडी पॉलिटी रियली वेल, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं पॉलिटी के। ट्रस्ट में, आप जितना लेवल का तैयारी करते हो उससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के इन प्रीलिम्स। फोकस ऑन इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सॉल्व होते हैं। Then comes your environment section. If you're prepared well, you will be able to solve the environment section. मेरे केस में I had one more strength because I had prepared ancient, medieval, आर्ट एंड कल्चर। जो लोग छोड़ देते ये सब चीजों को उतना ध्यान नहीं करते, आई हैड प्रिपेयर्ड इट रियली वेल। अपने छोटे नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज कर पाती थी। सो आई वाज आल्सो एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया। ये भी एक रीजन है कि कट ऑफ क्लियर हो जाता था, बिकॉज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट आई वर्कड रियली हार्ड फॉर प्रीलिम्स, बट ट्रस्ट मी, इन माय थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट आई डिड नॉट राइट एनी टेस्ट, बट आई वाज स्टिल एबल टू क्लियर माय प्रीलिम्स। रीजन कि आपकी बेस जब स्ट्रांग हो जाती है, व्हेन यू हैव रेड इनफ, when you have understood enough, वो क्लियर हो जाता है। सो आई टेल यू, प्लीज फोकस ऑन योर स्टैटिक, कीप योर स्टैटिक वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल्सो स्टडी करंट अफेयर्स, बट ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स को भगवान बना देना है एंड यू कीप इग्नोरिंग योर स्टैटिक पोर्शन। That's all for prelims. If you have any doubts, please write in the comment section so that I'll clear prelims related doubt and then I'll move to mains related queries. Book for geography, I referred 11th and 12th class का NCERT. History में I told you I referred to ancient R.S. Sharma.
एंड मेडिवल तमिलनाडु एनसीईआरटी एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। सीसैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीसैट के लिए अगर आपको लगता है कि वो आपका वीक है, यू कैन टेक सम क्लासेस फॉर इट। मतलब मेरा भी बहुत स्ट्रांग नहीं है सीसैट, दो मैं इंजीनियरिंग से हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा कि सीसैट का पैटर्न जा रहा है।